A very good morning, student. So, again, we continue our chapter number 4, that is reproductive health. In previous class, I explained some topic like birth control, how to control birth. So, first of all, I revised those topics. So, there are so many methods which helps to control birth. That is, first is what method? First is natural method. Okay, in natural method, periodic abstinence and withdrawal methods are come. Second method is barrier method, in which intrauterine devices are come like copper T. Then third is what? Third is chemical method, in which some chemicals are come, pills are come. And fourth is what? Fourth is your surgical method. Okay. So first is natural method. In natural method, periodic abstinence and penis withdrawal methods are come, which helps to prevent the entry of sperm. Okay. Then barrier method, in which some barriers are come like a condom or some intrauterine devices like copper T. Okay, which helps to fertilization of egg. Okay, which helps to prevent the fertilization of egg. Then in chemical method, what happens? Some pills are come like Saheli, which changes the hormonal level of female, because these pills are taken by females. Okay, so in females, the female sex hormone is what? Progesterone and estrogen. This is main female sex hormone. So when this hormones level is up or down, then what happen? Menstrual cycle processes occur. Okay, so in chemical method, these pills are taken by female, and at the time of fertilization, when fertilization occurs, the zygote is formed. So these pills uncontrol the level of hormones in female body. So what happened? Menstrual cycle proceed, due to which those zygote which is formed early, that is removed out from the genital tract of female. Okay. In surgical method, some surgeries are come like vesicotomy. Okay, like vesicotomy and tubectomy. So this method, vesicotomy methods occur in male, in which what happen? The vast difference of male is cut and tied up, due to which sperm is not released out. Okay. In tubectomy, the fallopian tube of female is cut and tied up, due to which the egg which is released from ovary is not fertilized. Okay, because fallopian tube is cut, so when sperm is entered into the female genital tract, it not motile into the fallopian tube. Okay, that's why the fertilization is not happen. Okay, so these are the some methods which helps to control the birth. In today's topic, we study first is MTP, second is second is what? STD, third is infertility. Okay, and fourth topic is our ET. Now you think what's this topics? MTP means medical termination of pregnancy. STD means sexually transmitted diseases. Infertility means a couple which are not producing baby due to some problem. Okay, and ET is the embryo transfer. So let's start today's topic. First is medical termination of pregnancy. In the topic medical termination of pregnancy, what happens? नाम से ही समझ में आ रहा है एफटीपी मतलब क्या हो रहा है? मेडिकली हम क्या करें? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं. सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो क्या कह सकते हैं? इसको एबॉर्शन भी कह सकते हैं. ठीक है ना. तो ये जो एबॉर्शन की प्रोसेस है या जो एमटीपी की प्रोसेस है, ये कोई भी पार्टनर जो है वो क्या करे? इंटेंशनली बहुत ही सोच समझ के ये डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ हमको एबॉर्शन करवाना है या हमको एमटीपी की प्रोसेस करवानी है. ठीक है. तो देखो अब जैसे एबॉर्शन वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, तो एबॉर्शन कभी कभी क्या होता है? वो एक्सीडेंटली भी हो जाता है, बट अभी हम वो एक्सीडेंटल केस की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, अभी हम इंटेंशनली सोच समझ के जब एबॉर्शन किया जा रहा है, करवाया जा रहा है डॉक्टर से, उसकी बात करें. तो ऐसा क्यों करवाया जाएगा? एबॉर्शन क्यों करवाया जाता है? तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है, तो यू नो वेरी वेल कि क्या करवाया जाता है? उसको चेक करने के लिए कि वो नॉर्मल है कि नहीं. सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें करवाते हैं, जिसके थ्रू पता चलता है हाँ कि जो बेबी यूट्रस में है वो क्या है? नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, जो भी है उसका पता लगाया जाता है. ठीक है. तो इन केस अगर बेबी एबनॉर्मल है, तो सबसे पहले तो या तो उसको ठीक करने का ट्राई किया जाएगा कि
उसको यूट्रस में ही ठीक कर सकते हैं कि नहीं, और अगर उसमें कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जो कि इन फ्यूचर भी ठीक ना हो सके, दैट्स वाई कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको एबॉर्शन करवाना है क्या। अगर वो जो पार्टनर्स हैं, वो जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि हाँ एबॉर्शन हो जाए, तो उस केस में ये एमटीपी की प्रोसेस की जाती है। ओके, और दूसरा चीज़, ये बर्थ को भी कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है, मतलब पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में हेल्प कर रही है ना। बट लोग क्या कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल कि आजकल के लोगों की, आजकल के क्या पहले से ही मेंटेलिटी चली आ रही है कि जो फीमेल, अगर फीमेल बेबी होती है तो उससे सबको प्रॉब्लम होता है कि मतलब ये तो जनरेशन, मतलब शादी करके चली जाएगी या बहुत पैसे खर्च करवाएगी, इस तरह का जो भी रीज़न है ना। इसकी वजह से कोई भी पार्टनर जो है वो क्या करते हैं, फीमेल को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, फीमेल बेबी को। तो वो क्या करते हैं, चेक करवा के, जैसे भी उनको पता चल गया कि हाँ जो बेबी आने वाला है दैट इज़ फीमेल, तो वो क्या करते हैं, उसको अबॉर्ट करवाना चाहते हैं, उसका एमटीपी करवाना चाहते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। क्यों बैन कर दिया है, क्योंकि ये जो फीमेल का ही डेथ हो रहा है, फीमेल को ही ख़त्म किया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, फीमेल फॉर्टिसाइड कहते हैं। ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, पॉपुलेशन में लेवल अप डाउन होगा, मेल ही मेल हो जाएंगे, फीमेल तो दिखाई नहीं देगी, और फीमेल बल्कि ज़रूरी है इन्वायरमेंट के लिए, मेल और फीमेल बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ओके, दैट्स वाई इन सब चीज़ों को क्या किया गया है, बैन कर दिया गया है। ओके, सो लेट्स रीड व्हाट हैपन। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो एमटीपी किसको कहा जाता है, जब कोई भी पार्टनर इंटेंशनली, बहुत ही सोच समझ के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहता है मेडिकली, तो उसको हम कहते हैं एमटीपी। ओके, या फिर उसी को हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। ओके, ये जो एमटीपी है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में, है ना, वो तो ऑब्वियसली है ही। देन ये क्या होता है, लीगल रेस्ट्रिक्शन इज देयर ओनली टू रिड्यूस फीमेल फॉर्टिसाइड। लीगली क्या किया गया है, रेस्ट्रिक्शन किया गया है कि फीमेल का जो फॉर्टिसाइड हो रहा है उसको रोका जाए, उस पर बैन लगाया गया है। ओके, और ये जो एमटीपी की प्रोसेस है, इसका भी एक मेथड होगा कि ये कब तक किया जा सकता है जिससे सब लोग सेफ रहें। तो ये जो एमटीपी की प्रोसेस है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो सकता है। तो देखो, आपको पता है कि गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है, गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो होता है 9 मंथ्स का। ओके, इन 9 मंथ में 3 ट्राइमेस्टर आते हैं, एक होता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर, देन थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका होगा 1 to 3 मंथ के बीच का जो ट्राइमेस्टर होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद 4 से 6 मंथ का जो मंथ होता है, दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड 7 to 9 मंथ इज कम इन थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, तो जो बेबी का एबॉर्शन किया जा रहा है, जो एमटीपी की प्रोसेस की जा रही है, वो कौन से ट्राइमेस्टर में की जाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जब बेबी जो है वो अर्ली एम्ब्रियो है, उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उस बीच में एमटीपी की प्रोसेस कर दी जाए तो उसके कारण जो मदर है उसको कोई खतरा नहीं होता है। ओके, अगर उसके बाद एबॉर्शन किया जाता है सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो इससे जो मदर है उसकी डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, बहुत से इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही करवा लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। देन द नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहे हैं, ऐसे डिजीज जो कि कब ट्रांसमिट हो रहे होंगे, सेक्स के दौरान। ओके, सेक्स के थ्रू जब कोई डिजीज ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। इसमें आपको बहुत से डिजीजेज आते हैं लाइक गोनोरिया, सिफिल्स, एड्स, हेपेटाइटिस, है ना। तो ये सब डिजीजेज कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि सेक्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। तो लेट्स रीड। Diseases or infection which are transmitted through sexual intercourse are called STDs. They are also known as venereal disease or reproductive tract infection. तो देखो, इसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ही वेनेरल डिजीज भी कहा जाता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारे शॉर्ट नेम्स लिखे हुए हैं लाइक STDs, VD, RTIs। ये शॉर्ट नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। आपको शॉर्ट नेम दे देगा, बोल देगा इसके फुल नेम लिखिए। ओके, या फिर मतलब ऐसे बोलेगा कि कुछ एसटीडीज डिजीजेस के नाम लिखे, तो ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। देन एग्जाम्पल क्या है उन सब डिजीज के, गोनोरिया, सिफिल्स, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियसिस, जेनाइटल वार्ट्स,
ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, HIV। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये क्या होगा, ये HIV नहीं होगा। HIV क्या है, HIV जो है वो कॉजिंग एजेंट है, सॉरी जस्ट अ मिनट। HIV क्या है, HIV जो है वो कॉजिंग एजेंट है, वो कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। HIV वायरस का नाम है, इसलिए अगर जब भी HIV एड्स की बात होती है तो इसमें डिजीज क्या है, एड्स है, AIDS, दैट इज डिजीज, एंड HIV इज द कॉजिंग एजेंट विच कॉज दिस डिजीज। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, तो आप इसको सुधार लेंगे। फिर क्या बता रहे हैं, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीस एंड एड्स इन्फेक्शन, अदर्स आर क्यूरेबल बिकॉज दिस आर वायरल डिजीजेस। क्या बता रहा है, हेपेटाइटिस बी को छोड़ के, जेनाइटल हर्पिस को छोड़ के और एड्स को छोड़ के बाकी जो डिजीजेस है लाइक गोनोरिया है, सिफिलिस है ना, इन सब चीज़ों को क्या किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के थ्रू या और भी कुछ इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं। बट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एड्स ये किसके वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। और यू नो वेरी वेल कि जो वायरस है उनका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को हमेशा चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण उनका वैक्सीन बनाना बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट टास्क है। जैसे कि आज ही के इन्वायरमेंट में देखो आप, अभी के इन्वायरमेंट पे एक वायरस है दैट इज़ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पे कब से ट्रायल चल रहा है वैक्सीन के, अदर डिफरेंट कंट्रीज़ अपना अपना मेडिकली ये सब चीज़ों को परफॉर्म करें, बट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये वायरस जो है ये हर टाइम क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। अब स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा तो जो वैक्सीन बन रहा है, वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन एंटीबॉडी होता है जो कि उस वायरस से जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा और उसको किल करेगा, ठीक है ना। बट अब उसके जैसा एंटीबॉडी बन, जो भी एंटीबॉडी डॉक्टर बनाते हैं, बाद में देखते हैं कि वायरस अपना स्ट्रक्चर चेंज कर ले रहा है, तो इसकी वजह से वो एंटीबॉडी क्या हो जा रही है, मतलब उसका कोई यूज़ ही नहीं रह जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये वायरस जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो इनसे जितना ज़्यादा बच के रहा जा सके उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ STDs हैं जो कि वायरस के थ्रू होते हैं, तो उन STDs को क्योर करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब उनका क्योर करने के लिए ना ही कोई वैक्सीन आई है, बस मेडिसिन के थ्रू कुछ दिन तक उसको ठीक किया जा सकता है। ओके, तो ये सब हो गया आपके STD के बारे में। अब इनके सिम्टम्स देख लेते हैं कि अगर STD हो रहा है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, है ना। तो क्या दिखाई देता है, ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन। तो देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो डिजीज़ अगर हुए हैं तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ईचिंग होता है, खुजली होगी, या कुछ फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, कुछ फ्लूइड रिलीज हो सकता है, हल्का पेन हो सकता है, और जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, जेनाइटल रीजन है, उसमें सूजन आ सकता है, उसमें स्वेलिंग हो सकती है। ओके, STDs remain asymptomatic in female and remain undetected for long। क्या बता रहा है कि ये जो STD होती है ये फीमेल में क्या है, एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक मतलब कि इसके सिम्टम्स जो है वो फीमेल में दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। अब फीमेल में कोई सिम्टम ही दिखाई नहीं दे रहा तो उस फीमेल को तो पता ही नहीं चलेगा उसको कोई डिजीज़ हुई है, क्योंकि हमको कोई भी डिजीज़ का कैसे पता चलता है, जब हमको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हमको बुखार भी हुआ है तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम, इस तरीके के कुछ ना कुछ हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमको पता चलता है हाँ हमको कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। बट ये जो फीमेल्स है उनमें STD के सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको कुछ हुआ है, और जब उनको पता ही नहीं चलेगा तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। दैट्स वाई ये जो डिजीजेज हैं ये क्या होती है, उनमें बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए रह जाती हैं। ओके, क्या लिखा है, इन द लेटर स्टेज इट में लीड्स टू पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज, एबॉर्शन, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, जिसकी वजह से फीमेल्स जो है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है, देखो यहाँ पे भी शॉर्ट नेम लिखा है दैट इज PID, एबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी बढ़ सकती है, इवन कैंसर जैसी इतनी हैजार्डस डिजीजेस भी हो सकते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, लाइक सर्वाइकल कैंसर है और यूटेराइन कैंसर है। इस तरीके के कैंसर जो होते हैं वो फीमेल्स में होने के चांसेस होते हैं। ओके, देन इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूजिंग कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वाइटस,
In case of doubt, consulting a doctor for early detection, getting complete treatment for diagnosed disease. ओके, तो क्या बता रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो सेक्स की प्रोसेस है उसको हमको जो मल्टीपल पार्टनर्स को रखना ही नहीं है, या कोई अननोन पार्टनर है तो उसके साथ ये प्रोसेस करनी ही नहीं है, ठीक है ना। देन सेकेंड वन इज़ कि अगर सेक्स हो भी रहा है तो किसका यूज़ करें, कॉन्डोम्स का यूज़ करें, क्योंकि ये जो है ये एक ऐसा बैरियर है जो कि इन सब डिजीज़ से बचा सकता है। इसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं जो कि बर्थ कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन वो आपको एसटीडी से नहीं बचा सकते हैं। ओके, दैट्स वाई। और अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि हाँ शायद आपको ऐसा डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या कुछ भी अजीब सा हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट किससे कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो जो डिजीज़ है उसका कम्प्लीटली क्या किया जाए, डायग्नोस किया जाए, उसको डिटेक्ट किया जाए, हाँ कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुई है और इससे ओवरकम कैसे किया जाए। ओके, तो ये था आपके किसके बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, जब भी इनफर्टिलिटी की बात आती है मतलब कि जो भी पार्टनर्स हैं या जो भी कपल्स हैं उनका बेबी नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न से, तो उनको हम क्या कहते हैं, इनफर्टाइल कहते हैं, है ना। तो ये जो इनफर्टिलिटी है ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल में ही हो, ये मेल में भी हो सकती है। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि सब सोच रहे हैं कि फ़ीमेल में ही कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए अभी तक बेबी नहीं हुआ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेल में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, लाइक मेल में जितना स्पर्म रिलीज होना चाहिए उतना स्पर्म रिलीज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण एग फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है ना। फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जो जाइगोट इम्प्लांट होता है यूटरस में जाके, एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है यूटरस में, तो कभी कभी यूटरस इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो क्या करे, जो इम्प्लांट एम्ब्रियो है उसको अच्छे से कैरी कर पाए, ठीक है ना। तो ये सब वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी बढ़ती है। ओके, तो let's read. The couple unable to produce children in spite of unprotected sex is called infertility. Problem of infertility may be in male or female. तो क्या बता रहा है कि ऐसे कपल्स जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, मतलब जो कि कोई मेथड यूज़ नहीं कर रहे, कोई भी बैरियर मेथड हो, चाहे केमिकल मेथड हो, चाहे नेचुरल मेथड, कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं और उस दौरान वो सेक्स कर रहे हैं तो भी उनका बेबी नहीं हो रहा है, तो वो क्या दिखाता है, वो इनफर्टिलिटी को शो करता है। ओके, और ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। देन रीज़न क्या है इनफर्टिलिटी का, तो सबसे पहले फिजिकल हो सकता है, फिजिकली दोनों पार्टनर में से कोई एक स्ट्रांग ना हो, है ना। डिजीजेस, कोई डिजीज़ हो जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो है वो इन्हेंस हो, सॉरी डिक्रीज़ हो रही है। ओके, ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं या फिर कोई पार्टनर्स जो होते हैं वो ड्रग्स भी लेते हैं, उस वजह से भी इनफर्टिलिटी के चांसेस। इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल मतलब ये आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इम्यून सिस्टम जो कि डिफेंस सिस्टम है आपके बॉडी का, कोई भी माइक्रोब्स आता है तो उससे लड़ने का काम कौन करता है, इम्यून सिस्टम करता है। तो इम्यूनोलॉजिकली भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती है ना। उसके अलावा इवन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी क्या होता है, इनफर्टिलिटी बढ़ती है। अब ये इनफर्टिलिटी जो है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए। तो इनफर्टिलिटी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कुछ मेथड्स हैं उनके थ्रू। तो क्या मेथड है, IVF-ET, GIFT, ZIFT, IUI। देखो यहाँ पे कितने सारे शॉर्ट नेम्स दिए हैं, ये शॉर्ट नेम्स आते ही हैं, इसलिए प्लीज़ आप कॉपी में एक पेज में ये जितने भी आपके इस चैप्टर में शॉर्ट नेम्स हैं उनको शॉर्ट नेम और उसके आगे उनके फुल नेम लिखेंगे। ओके, तो IVF-ET का फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। नाम से ही समझ में आ रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कह रहा है मतलब कि ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही होगी कहाँ पे हो रही होगी, आपके लैब में। ओके, लैब में हो रही होगी। अब लैब में कैसे होगा, जो भी पार्टनर्स हैं उनसे क्या किया गया, फीमेल पार्टनर से एग ले लिया गया, मेल से स्पर्म एक्सट्रैक्ट करवाया गया, ठीक है ना, और उसको लैब में वैसा ही एटमॉस्फेयर दिया गया जैसे कि फीमेल बॉडी के अंदर रहता है ना। फीमेल के फैलोपियन ट्यूब का जैसा कंडीशन रहता है सेम वैसा ही एटमॉस्फेयर दिया गया, जिसके कारण एग जो है वो क्या हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म से। ओके, अब एग फर्टिलाइज हो गया, एग फर्टिलाइज होने के बाद वो जाइगोट में चेंज हुआ। जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट में क्लीवेज होता है, वो मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला, इस तरह के सेल स्टेजेस में आता है, ठीक है ना। तो जब वो एम्ब्रियो बनेगा तो उसको क्या किया जाएगा, जाइगो उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अब एम्ब्रियो की ट्रांसफ़र की बात हो रही है, मतलब वो किस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है होगा, यूटेरस में।
ओके, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही यूट्रस में क्या किया जाता है, जो एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, नेचुरली वो अपने आप इम्प्लांट हो जाता है, बट अब ये हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली कर रहे हैं, तो उसको इम्प्लांट करना पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट इज GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या किया जा रहा है, गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि इन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है ना। तो GIFT में इसको गिफ्ट भी कह सकते हैं आप। इसमें क्या किया जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में गैमेट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है ताकि क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए और फिर नॉर्मल प्रोसेस चले। जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो कुछ सेल स्टेज में, फिर एम्ब्रियो फॉर्म में वो कहाँ पे आ जाए, यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाए। ओके, देन द नेक्स्ट मेथड इज ZIFT, जिफ्ट भी कहते हैं इसको, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या किया जा रहा है, देखो नाम ही से ही समझना, फर्स्ट वाले में एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किया जा रहा था, सेकंड वाले में जाइगोट के ट्रांसफ़र की बात हो रही है, ठीक है। तो जाइगोट को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट को क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि जाइगोट जो है फैलोपियन ट्यूब में जाके उसका क्लीवेज वगैरह होगा, वो मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला इस तरीके सेल स्टेजेस में चेंज होगा और एम्ब्रियोनिक फॉर्म में आके वो कहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, दैट्स फाइन। ओके, फिर एक मेथड है IUI, दैट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, जो सीमेन है जो कि किससे रिलीज आउट होता है, मेल से, उस सीमेन में क्या होता है, स्पर्म होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है ना, दैट्स वाई उसको हम सीमेन कहते हैं। तो इन मतलब किसी के अंदर जाना, ठीक है। तो जब स्पर्म को यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आप आजकल सुनते हो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये, है ना। हर जगह हमको देखने के लिए मिलता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू आप जो इनफर्टाइल कपल है वो बेबी को पा सकते हैं, इस तरीके का बहुत सारे एड्स वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है ये होता भी है, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में एक्चुअल में क्या किया जाता है, इस टेक्निक में जो वाइफ है, ठीक है ना, उससे ओवा को लिया जाता है, ओवा मीन्स एग को, या उसी को हम ओवम भी कहते हैं, ठीक है। तो वाइफ से एग ले लिया जाता है और हस्बैंड जो है वो क्या करता है, स्पर्म दे देता है, ठीक है। अब ये एग और स्पर्म को लैब में क्या करवाया जाएगा, फर्टिलाइज करवाया जाएगा, सेम उसको वैसा कंडीशन दिया जाएगा जैसा कि फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है, ओके, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ताकि एग जो है वो क्या हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए। और जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब उस जाइगोट को क्या करते हैं, लेबोरेटरी कंडीशंस में रखते हैं और फिर जब वो जाइगोट जो है वो अर्ली एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, ओके, सॉरी, अर्ली एम्ब्रियो कह रहा है, मतलब कि अभी वो पूरी तरह से एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में नहीं है, अभी अर्ली एम्ब्रियो मतलब कि जब वो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में आता है तब उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, ताकि वो धीरे से जाके कहाँ पे अपने आप को इम्प्लांट कर ले, इन यूटरस में। ओके, देन फर्दर डेवलपमेंट टेकन प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी, और ये सारी प्रोसेस किसके अंदर होती है, फीमेल बॉडी के अंदर। आधा तो लेबोरेटरी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो किस में होती है, फीमेल बॉडी में, क्योंकि हम सभी को पता है कि फीमेल ही बेबी को बर्थ देती है। ओके, बेबी का बर्थ किसके थ्रू होता है, फीमेल के थ्रू ही होता है। वही 9th मंथ जो है बेबी को अपने अंदर रखती है, अपने यूट्रस में रखती है, दैट्स वाई आगे की प्रोसेस किस में होगी, ऑब्वियसली फीमेल की बॉडी में होगी, ठीक है। तो ये था आपके इस चैप्टर का पूरा टॉपिक। अब इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, MTP के बारे में मैंने पढ़ा दिया। वैसे देखो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा सा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इस चैप्टर का मेन एम क्या है, ये चैप्टर पढ़ाने का मेन एम ये है कि लोग अवेयर हों, क्योंकि आपको पता है अगर अवेयरनेस नहीं रहेगी तो जैसे हमने STD पढ़ा, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, है ना। ये सब STDs ट्रांसमिट होने के चांसेस हो जाएंगे। उसके अलावा जो इनफर्टाइल कपल हैं उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं रहेगा, तो वो तो हमेशा ही सोचेंगे कि उनका बेबी कभी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। दैट्स वाई अवेयरनेस के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। आप अभी से अवेयर रहोगे तो हो सकता है आप दूसरों को अवेयर करो, और इन फ्यूचर आपकी भी जनरेशन आएगी तो आपको भी इन सब चीज़ों से क्या होना है, अवेयर होना है। ओके, तो ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा चैप्टर है। मैंने स्लाइड्स पूरे दे दिए हैं, नोट्स आप उसी में कॉपी में बना लेंगे। उसके अलावा अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करूँगी। ओके,
और इसमें जितने भी शॉर्ट वर्ड्स हैं, शॉर्ट टर्म्स है, उसको आप बिल्कुल अच्छे से एक पेज में लिख के याद कर लेंगे, क्योंकि जैसे आप ZIFT, GIFT, इन सब चीज़ों, ये सब शॉर्ट नेम्स जो है, इनका जो फुल नेम है ये आता ही है पेपर में। ओके, तो आपको याद रखना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में बोले एक्सप्लेन MTP, तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि MTP का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? भले ही आपको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि MTP का जो फुल फॉर्म है वही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये शॉर्ट नेम्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, सो नाउ टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग।